الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه میرے مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے مجھ پر بھی تیرا ہو کرم تیرے کرم پہ مجھ کو یقین ہے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ سے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے میری رب سے دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم میرے واجب الاحترام بزرگ و دوستو بھائیوں، میں آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حق پرستوں کی اگر
کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ یہ شعر ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں اور اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آج اس وقت مسلم امہ کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہے۔ اپنا ملک دیکھیں، کوئی غیر ملک دیکھیں، اگر کوئی ایسی جگہ بھی دیکھیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی پرامن جگہ ہے، کہیں بھی مسلمان اپنی جان کے حوالے سے یا اپنے مال کے حوالے سے محفوظ نظر نہیں آ رہا۔ یہاں تک کہ ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں، ہم خود بھی دلی طور پر مطمئن نہیں ہیں، ڈر اور خوف میں مبتلا ہے۔ ہر لمحے یہ ڈر رہتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ مالدار ہے تو اس کو مال کے ضائع ہونے کا ڈر ہے، کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے خواہ وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو، اس سے جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی دو چیزیں دنیا کے اندر میرے آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم اپنے علاقے میں بظاہر پرامن رہتے ہوئے بھی دلی طور پر مطمئن نہیں، دل میں سکون نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ وہ علاقے ہوں جہاں پر مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میری نظر سے ایک ویڈیو گزری، انڈیا کی ویڈیو تھی، ہمارے پڑوس کی۔ گلی میں جاتے ہوئے ایک مسلم نوجوان کو، گلی میں جاتے ہوئے ایک مسلم نوجوان کو دو ہندوؤں نے چھریوں کے اور خنجروں کے وار کر کے شہید کر دیا، بغیر کسی وجہ کے۔ فلسطین کو دیکھتے ہیں، غزہ کو دیکھتے ہیں، اوورآل پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات اس وقت قابل رحم ہیں۔ ظلم کی چکی میں پس رہے، یہاں تک کہ آج کافر پوری ڈٹائی کے ساتھ یہ کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا کہاں ہے۔ آج کفر، آج یہودیت، آج اللہ تعالیٰ کے منکر لوگ جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے پوری ڈٹائی کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا خدا کہاں ہے۔ اگر مسلمانوں کا خدا ہوتا تو مسلمانوں کو بچاتا کیوں ہے؟ اگر مسلمانوں کا خدا ہے تو مسجد اقصی آزاد کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر مسلمانوں کا خدا موجود ہے تو پھر پوری دنیا میں مسلمان ظلم کی چکی کا شکار کیوں ہے؟
یہ سوال بنتا ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ اسی قسم کا ہے کہ حق پرستوں کی اگر کی تو انہیں دل جوئی نہیں، کہ جو لوگ حق کا علم لے کر پوری دنیا میں اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے پھر رہے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ اگر تو نے ان کی دل جوئی نہیں کی، ان کا حوصلہ نہیں بڑھایا، ان کی نصرت نہیں کی، ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، جو بھی صورت تعاون کی بن سکتی تھی آپ نے نہیں کیا، تو لا محالہ پھر بت پرست تو کیا، وہ بت بھی جو معبودان باطلہ ہیں وہ بھی، ان سے بھی ہمیں یہ آواز سنائی دے گی کہ تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ مسلمان اس حد تک کیوں گر گیا؟ مسلمان زوال پذیر کیوں ہو گیا؟ ظلم کی چکی میں کیوں پس رہا ہے؟ حالانکہ جب ہم اپنی تاریخ کو اٹھاتے ہیں تو ہمیں کیسر و کسریٰ کے محلات کو فتح کرتے ہوئے مسلم حکمران نظر آتے ہیں، ہمیں خلافت عثمانیہ نظر آتی ہے، ہمیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور نظر آتا ہے، ہمیں مغلیہ سلطنت کا ہندوستان میں 100 سالہ دور نظر آتا ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہر ایک اپنا اپنا ٹکڑا لے کر اس کی حفاظت کر رہا ہے، باقیوں کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اس کی وجہ ایک تو اجتماعیت کا خاتمہ، کہ مسلمان اس وقت مجتمع نہیں ہے، مسلمان اس وقت ایک جماعت کی صورت میں نہیں، جتھوں کی صورت میں بن گئے، ہر کسی کو اپنی پڑ گئی۔ نمبر 2، مسلمان اللہ کی نافرمانی کر کر کے اللہ کی رحمت سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ ابھی نظر نہیں آ رہا کہ ان مسلمانوں کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی یا نہیں۔ آج کل عام طور پہ یہ باتیں لوگ دوستوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں تو ہم جناب حالات حاضرہ پہ گفتگو کرتے ہیں، ہم جناب یہ بات اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک میں فرقہ واریت بہت، ہم یہ کہتے ہوئے ایک دوسرے کو نظر آئیں گے کہ ہمارے ملک میں فساد بہت۔ کسی محفل میں بیٹھیں گے تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جناب رشوت عام ہو گئی، جناب زناکاری عام ہو گئی، سود بازاری کا بازار گرم ہو چکا۔ ہم اپنی محافل میں یہ کہتے ہوئے رکتے نہیں ہیں کہ لوٹ کسوٹ کا بازار گرم، قتل و غارت گری عام ہو چکی، ظلم عام ہو چکا ہے، حلت اور حرمت کا فقدان ہو چکا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو چکی، ذکر الہی سے دوری، عبادات سے غفلت، گناہ اور برائی کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، نیکی سے نفرت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں یہ وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جن کو ہم اپنی مجالس میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں۔ فرقہ واریت میں میں بات کر رہا ہوں، میں خود فرقہ واریت کے اندر ملوث ہوں، رشوت خوری کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جس مجمع میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اس میں راشی لوگ بھی بیٹھے ہوئے،
سود بازاری کی میں بات کرتا ہوں، جہاں میں بات کر رہا ہوں وہاں سود خور بھی بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ اگر خدا نہ خواستہ میں سود خوری کے حوالے سے بات کروں تو میں خود اس گناہ کے اندر مشغول ہوں۔ لوٹ کھسور کا معاملہ ہے، ظلم کا معاملہ ہے، حلت اور حرمت کے فقدان کا معاملہ ہے۔ ہم مجالس میں بیٹھ کر، اپنی محافل میں بیٹھ کر ہم ان گناہوں کے بارے میں مذاکرہ کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے بارے میں، دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں اگر سود کے بارے میں بات کر رہا ہوں، میں سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں رشوت کی بات کر رہا ہوں، میں رشوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میں جھوٹ کی مذمت کر رہا ہوں، میں جھوٹ سے رکنے کے لیے تیار نہیں۔ میں دھوکے اور فراڈ کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فراڈ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ میں بہنوں کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہوں، اس پر بات بھی کر رہا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہا، بات میں جناب مسلح بن کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح ذکر الہی میرے اندر موجود نہیں، عبادت میرے اندر موجود نہیں، برائی کا شوق میرے اندر موجود ہے، نیکی سے نفرت میرے اندر پائی گئی ہے، لیکن میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، لوگ ایسے کر رہے ہیں۔ میں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی بھائیو، بات سمجھ آ رہی؟ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ میں کسی کو ٹوک نہیں مار رہا، میں معاشرے کے فسادات، معاشرے کی برائیاں میں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے، آپ ان کو سمجھاتے رہیے، اس لیے کہ سمجھانا کسی نہ کسی موقع پر تو ایمان والوں کو نفع دے دے گا۔ بات سمجھ رہے؟ اگر سمجھائیں گے نہیں، کوئی سمجھانے والا ہی باقی نہیں رہے گا، دین کے معاملات کا مذاکرہ کرنے والا ہی کوئی نہ ہوگا، گناہوں کی نحوست، گناہوں کے برے اثرات بتانے والا جب کوئی نہ رہے گا تو مجھے بتاؤ کہ ہمارا معاشرہ برائی سے ہٹ کر سیدھے راستے کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ گناہوں کی نحوست کیا ہوتی ہے، گناہوں کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں، گناہوں کے برے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور نیکی کے اچھے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نزہۃ البساطین ایک کتاب ہے، اولیاء اللہ کے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرائے، اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا طواف کرائے، عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو۔ یہ قسمت کی باتیں، یہ خوش نصیبی کی باتیں، اللہ جس کو قبول کرتے اپنے گھر میں آنے کی توفیق۔ یاد رکھنا یہاں مال نہیں چلتا، میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں اللہ نے اگر مال دیا ہے نا تو پہلی فرصت اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ جو تو نے مال دیا ہے نا مجھے اس مال کی لاج رکھنے کی توفیق دے، یا اللہ میرے اس مال کو اپنے راستے میں قبول فرما لے۔ دعا کرنی چاہیے اور حج عمرہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا یہ خوش نصیبوں والے معاملات ہیں جو لوگ اللہ کے گھر جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی زیارت کرتے ہیں، پیارے آقا کے روضے کا دیدار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے خوش نصیب لوگ ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے۔ خیر، یہ بزرگ کہتے ہیں میں طواف کر رہا ہوں، طواف کرتے کرتے میں نے ایک عورت کی زبان سے آواز سنی۔ ایک عورت طواف کرتے کرتے
उसकी जुबान पे एक जुमला है, जुमला क्या है? या करीम। क्या है? या करीम। करीम किसका नाम है? ए करम करने वाले, ए करम करने वाले। या करीम, या करीम। वो बुजुर्ग कहते हैं, वो औरत कह रही या करीम, या करीम अहदिकल कदीम। ये अरबी में वो औरत बोल रही। इसका मफहूम आपकी गोशगुजार करके आगे चलता हूं। ए करीम अल्लाह, या करीम, ए करीम अल्लाह, या करीम, ए करीम अल्लाह, अहदिकल कदीम, अहदिकल कदीम। कहते अल्लाह, ए करीम अल्लाह, ए करीम अल्लाह, तेरा वादा कदीम है, या तेरा वादा बड़ा ही पुराना है, बड़ा पुराना है। अब ये आपको समझ नहीं आएगी जुमले का मतलब क्या है। बुजुर्गों ने कहा मतलब यह है कि औरत ये कह रही है कि या अल्लाह, तेरा वादा बड़ा ही पुराना है, तेरा वादा बड़ा ही पुराना है। मैं इसको मजीद खोलूं, मेरे रब का वादा यह है कि जो बंदा गुनाह से बचेगा, मेरे अल्लाह का वादा है, जो बंदा गुनाह से बचता है मैं उसकी बख्शिश कर देता हूं। जो बंदा गुनाहों से माफी मांगता है मैं उसको माफ कर देता हूं। ये मेरे अल्लाह का वादा है। और ये मेरे अल्लाह का वादा आज का, बोलो बोलो, आज का। ये बुजुर्ग कहते हैं, मैंने उस औरत से मुखातब हुआ कि ए अल्लाह की बंदी, ये कौन सा ऐसा वादा है? या करीम, या करीम अहदिकल कदीम, ये कौन सा वादा है जिस वादे को तू अपने अल्लाह के सामने जिक्र कर रही है, जिस वादे का तू अपने अल्लाह को वास्ता दे रही है? आओ ना हम अल्लाह से वही वादा, उसका वास्ता देकर अल्लाह से मांगे। या अल्लाह, तूने अज़ल से वादा कर रखा है, बोला तूने अज़ल से अहद कर रखा है, जो बंदा गुनाह लेकर आएगा मुझसे माफी मांगेगा, मैं खुदा उसे माफ कर दूंगा। इन्नल्लाह, सॉरी, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ये मेरे रब का वादा है कि ऐ मेरे वो बंदो जो अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, आओ तो सही मेरी रहमत की तरफ, आओ तो सही मेरी आगोश की तरफ, आओ तो सही मेरे बख्शिश के दरिया की तरफ, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ फरमा दूं। आज लोग अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होकर खुदकुशियां करने लगे। आए रोज हम अखबार पढ़ते हैं, बल्कि खबरें सुनते हैं। अब इस वक्त तो हर बंदे की जेब में पूरी दुनिया मौजूद है। दुनिया की खबरें उस बंदे के पास 24 घंटे मौजूद रहती है। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होकर कोई अपने आप को फायर मार रहा है, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई पहाड़ से अपने आप को गिरा रहा है, कोई जनाब पानी में छलांग लगा रहा है, कोई आग में जल के मर रहा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो भाइयों, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये कलमा पढ़ने वाला है, अपने आप को मुसलमान कहने वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा लगाने वाला है, ये नमाजी भी होगा, ये कुरान की तिलावत भी करता होगा, ये रमजान के रोजे भी रखता होगा, लेकिन क्या कर रहा है? अल्लाह ताला माफ फरमाए, खुदकुशी कर रहा है, अपने आप को मार रहा है, अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होकर। मेरे रब की रहमत खत्म तो नहीं हुई, मेरे रब की रहमत तो बरस रही है। हमने अपने अल्लाह की रहमत को नाराज कर रखा है, अपने से दूर कर रखा है अपनी बदअमालियों की वजह से। खैर, उस औरत ने अपने अल्लाह को वास्ता दिया, या करीम अहदिकल कदीम। वो कौन सा वादा है जिस वादे का अपने अल्लाह को वास्ता दे रही? अब उस औरत ने अपना किस्सा सुनाया। कहती हजरत, बात यह है, मैं अपने खानदान के साथ, अपने बच्चे के साथ, मैं एक दरियाई सफर पर थी, पानी के सफर पर थी, कश्ती में थी।
बहुत सारे लोग उस कश्ती में सवार थे, मैं भी सवार थी। हवा गैर मुवाफिक हुई, हमारी कश्ती भंवर में फंस गई। भंवर समझते हैं? बोलो यारो, ओ घूमन घेरा पानी में हो जाता है ना, एक जगह पे पानी घूमने लग जाता है, उसको कहते हैं भंवर। ये अपना क्या कहते हैं, जमींदार को इस बात का ज्यादा पता होगा, जो पानी लगाते हैं फसलों में। वो चूहे की खोड वगैरह आ जाए ना, तो उसके अंदर पानी जब डालता है वो ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है कि पानी अंदर जा रहा है। जब ये चीज समंदर के अंदर हो तो फिर तो ये चीज खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाती। इस भंवर के अंदर फिर जो भी कोई चीज आती है, कश्ती तो क्या, बड़े बड़े जहाज भी तबाह हो जाते हैं। वो कश्ती भंवर में फंस गई। अब ये औरत अपना किस्सा सुना रही, हमारी कश्ती भंवर में फंसी, कश्ती के जितने लोग सवार थे सारे पानी में डूब गए, कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई। अल्लाह ने हमें बचाया। कहती मैं और मेरा बच्चा बच गए। हम एक तख्ते पे सवार हैं, सारी रात इसी तरह गुजारी, तख्ता फिरता रहा। सुबह की रोशनी होती है, एक और तख्ता है, उस तख्ते पे एक हबशी है, एक आदमी, वो भी उसी कश्ती से बचा हुआ बंदा था। जब उसने मुझे देखा तो कहती वो लड़का, वो हबशी मेरी तरफ आ गया और हमारे वाले तख्ते पे सवार हो गया और आकर मेरे साथ बुराई का इरादा करना चाहा। तो जो है सबकी जान जोखों में है, जान जोखों में है, हिचकिचोले खाते फिर रहे हैं। तो औरत ने क्या कहा, वो हबशी मेरे साथ बुराई का इरादा करने लगा, ख्वाहिश की तकमील करने लगा, मुझे जनाब रजामंद करने लगा। मैंने उस आदमी से कहा कि खुदा का खौफ कर, अल्लाह का खौफ कर, हम किस मुश्किल में हैं, अल्लाह ने हमें महफूज रखा है, अल्लाह ताला से दुआ कर, अल्लाह हमें किनारे तक पहुंचा दे। क्यों जी, ऐसे हालात में तो वही कुछ होता है ना, डूबते को तिनके का, बोलो भाइयों, डूबते को तिनके का सहारा। बस उस वक्त तो सूरत हाल यही थी। लेकिन इस हबशी ने क्या कहा, अपने गलत इरादे की तकमील की ख्वाहिश की है। अब इस औरत से जब कुछ बन ना पड़ा, ये कहती हजरत मैंने अपने बच्चे के चुटकी काटी, मेरा बच्चा रोने लग गया। मैंने बहाना बनाया कि अच्छा चलो ठहरो, मैं जरा बच्चे को चुप करा लूं, फिर मैं तेरी बात सुनती हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। कहते मैंने जब ये बात की तो उस हबशी ने मेरे बच्चे को उठाया और समुद्र में डाल दिया, फेंक दिया कि चल जाओ, अब इसकी भी जान छूटी। जब उसने मेरे बच्चे को पानी में फेंका, आप जानते हैं मां तो अपने बच्चे के पांव पे कांटा भी बर्दाश्त है ना। आज गजा में माओ के सामने उनके बच्चों के चीथड़े उड़ रहे। आज दुनिया में माओ के सामने उनके बच्चों के टुकड़े हो रहे हैं। वो माएं अपने बच्चों के टुकड़ों को उठाकर अपने रब की रहमत को पुकार रही है, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पुकार रही है, लेकिन आज कोई भी सलाहुद्दीन बनने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान तो अपनी मस्ती में जिंदगी गुजार रहा है। आज हम हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी मज़लूमाना शहादत को बयान करते हुए रो पड़ते हैं। उनके बच्चों के साथ क्या हुआ रो पड़ते हैं। हाँ, वाक़ियतन तारीख में ऐसा जुल्म नहीं किया गया किसी पर जैसा जुल्म अहले बैत पे हुआ मैदान करबो बला में। हज़रत हुसैन ने भी अपने बेटे अली असगर के छोटे से वजूद को, जब उनके हलक में तीर लगा शहीद हो गए, छोटे से वजूद को उठाकर अपने रब के सामने पेश किया था। मां तो मां होती है, बाप तो बाप होता है। आप जानते हैं इस बात को, हमें नहीं पहले अंदाजा होता था कि हमारे माँ बाप हमारी गैर मौजूदगी में चंद मिनट घर में आने पर लेट हो जाए तो हमारे माँ बाप का खाना हराम हो जाया करता। क्यों जी, ऐसा होता था कि नहीं? बोलो यारो, पुत्र ने आना कहते पुत्र लेट हो गया, प्यो दे लुकमा लंघदा अगे है। माँ तो दूर हंसती रही भाई। माँ कहते ना बाप जरा मजबूत होता है,
बाप मजबूत होता है, बाप मजबूत कोई नहीं होता। अल्लाह ताला उसके दिल में जज्बा डाल देते हैं, बाप भी दिल के आंसू रो रहा होता है लेकिन जाहिर नहीं करता। माँ का दिल कमजोर होता है, बाप का दिल मजबूत होता है। मोहब्बत बाप को भी उतनी होती है अपनी औलाद के साथ जितनी माँ को अपनी औलाद के साथ होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा बापों को रोते हुए। जब नए बाप बने थे तब इस कैफियत का अंदाजा नहीं था और बंदे को नहीं होता, बाप बनने के बाद अंदाजा होता है कि औलाद क्या चीज है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा अमाल तुम्हारे लिए फितना है। ये फितने का मतलब आजमाइश की चीज है। औलाद को देखकर तो बड़ों बड़ों के ईमान डामाडोल हो जाते हैं। जब बच्चे को दरिया में डाल दिया गया, मां की ममता तड़पी। अब मां ने दिल ही दिल में अपने अल्लाह को पुकारा, या अल्लाह मैंने बड़ी कोशिश की है गुनाह से बचने की, या अल्लाह अब तो मैं जिगर का टुकड़ा भी गवा बैठी हूं, लेकिन उसको क्या पता कि मेरे रब का तकवीनी सिस्टम इस वक्त हरकत में है। मेरे रब का गैबाना सिस्टम और निजाम इस वक्त मुतहर्रिक हो चुका है। जो बंदा गुनाह से बचता है मेरा रब उसके लिए हिफाजत के इंतजाम खुद फरमा देता है। इस औरत ने अल्लाह से मदद मांगे, या अल्लाह मैंने तो बहुत कोशिश की, ये अपने इरादे की तकमील करेगा, मैं अपना बच्चा गवा बैठी हूं, मौला तूने ही मेरी मदद करनी। हाँ, अगर बंदा कह दे अपने अल्लाह को, पुकारे अपने रब को, खलवत में पुकारे अपने रब को, है कोई बात फंसी हुई है जनाब, कोई काम नहीं हो रहा, लोगों की से नजरें उठाकर अपने रब के सामने आ तो सही, अपने रब के सामने हाथ फैला तो सही, या करीम की सदा लगा तो सही, और अपने अल्लाह से कह मौला मैं तेरे कोलों तेरी मदद हासिल कीते जाना नहीं। अपनी पंजाबी च बोल, जज्बात में बोल, अपने रब की रहमत को पुकार, देखो मेरे अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुंदी है कि नहीं हुंदी। औरत ने दुआ मांगी। इसी असना में वो कहते हैं कि एक अजीब किस्म का जानवर निकला पानी से और उसने उस हबशी को अपने मुंह में लिया, उसका लुकमा बनाया और गैब हो गया। अल्लाह ने बचाया, बोलो अल्लाह ने बचाया। गुनाह से बचने की कोशिश की, अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह ने महफूज रखा। आगे चलो जरा, आगे मामला क्या हुआ। ये उसी तख्ते पे तख्ता हिचकिचोले खाते हुए एक जजीरे पे पहुंचा। 3 से 4 दिन, बड़ा लंबा किस्सा है, 3 से 4 दिन ये औरत उस जजीरे पे रही। कुछ दिनों के बाद एक कश्ती उसको अपने जजीरे की तरफ आती हुई नजर आती। उसने अपना दुपट्टा लहराया कि जिंदगी की उम्मीद नजर आ गई। कश्ती वाले आए, उसमें 3 लोग सवार हैं। इस औरत को कश्ती में बैठाया। ये औरत देखती है कि कश्ती में एक आदमी ने मेरे बेटे को पकड़ा हुआ है। जो बच्चा यहूदी ने दरिया में फेंक दिया था, मैंने पहले कहा इस औरत ने तो सिर्फ जबान हिलाई कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। उस वक्त मेरे रब का गायबाना सिस्टम और निजाम मुतहर्रिक हो चुका था। मेरे रब ने बचाया उसके बच्चे को। तो कहती मैं उस पर लिपट गई। वो बंदों ने कहा कि औरत उसको, बूढ़ी अम्मा क्या हुआ? कहती है मेरा बेटा। ये तेरा बेटा कैसे हो सकता है? कहती मेरा बेटा है। अपना सारा किस्सा सुनाया। अब वो कश्ती बान भी कहते हैं हाँ अगर आपने ये किस्सा सुनाया अब हमसे भी किस्सा सुनो। अब उन कश्ती वालों ने किस्सा सुनाया। कहते हैं हम जब कश्ती समंदर में हैं, एक अजीब किस्म का जानवर निकला, उसकी पुष्ट पर यह बच्चा सवार था, उसकी पीठ पर यह बच्चा सवार था। और हमें गायब से आवाज आती है इस बच्चे को ले लो, इस बच्चे को पकड़ लो, अगर नहीं पकड़ोगे तो तुम्हारा भी नुकसान हो जाएगा।
तुम्हें भी डुबो दिया जाएगा। अब उस औरत ने सारा किस्सा सुनाया, उन मर्दों ने सारा किस्सा सुनाया। खुलासा यह निकलता है इस किस्से से कि जो लोग अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला कदम कदम पे उनके लिए हिफाजत के इंतजाम फरमा देते हैं। और जो लोग गुनाह से नहीं बचते, गुनाह से बचने की कोशिश भी नहीं करते, अल्लाह ताला उनको ऐसे तबाह कर देते हैं जैसे उस हबशी को तबाह करके रख दी। ओ भाइयों, बात समझ आइए कुछ? मैं ये बताना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस वक्त उम्मत मुसलमा की जो हालत है, इन गुनाहों की दलदल में फंस जाने की वजह से ईमानी कैफियत भी कमजोर, ईमानी कैफियत भी क्या हो गई? कमजोर हो गई। हालात भी क्या हो गए? कमजोर हो गए। इसीलिए काफिर ताकतें आज एक एक अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा होकर मुसलमानों पे टूट पड़ी, और मुसलमान है वो अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं। अगर एक बात इससे बढ़ के अर्ज करूं, हम ऐसे हालात में जी रहे हैं कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। नफ्सा नफ्सी का, हम पेट्रोल पूरा करें या घर का राशन पूरा करें, घर का राशन पूरा करें या जनाब अपने बच्चों की दवाई दारू का इंतजाम करें, दवाई दारू का इंतजाम करें या अपनी सेहत का कुछ ख्याल करें, हम क्या करें? जब नमाज भी पढ़ते हैं तो यही ज़हन में आता है कि जनाब नमाज के बाद मैंने अपने बच्चों के खाने के इंतजाम कैसे करना है। हम तो इस दौर में जी रहे हैं, हमारी कैफियत इस हद तक पहुंच चुकी है। मैं बार बार ये अर्ज करता हूं, यहां तक पहुंचने में, इस कैफियत तक पहुंचने में हुकूमतों का किरदार नहीं है, मेरे आपके अपने अमाल का यह सबब और नतीजा है। कुरान कहते हैं वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों को छोड़ो। कुरान कह रहा है वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून। कुरान पाक की आयत पढ़ रहा हूं, ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों को छोड़ो। अगर तुम ज़ाहिरी और बातनी गुनाहों को छोड़ोगे नहीं, अनकरीब उन गुनाहों की वजह से तुम्हें सजा मिलेगी। और याद रखना, सजा की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं अल्लाह उनकी दुनिया में भी बंदे को सजा देते। बताऊं? कुरान से पूछ लेते। मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। ये सूरह तौहा की आयत पढ़ रहा हूं। मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसने मेरी इबादत से, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, सादा लफ्ज़ों में यूं कि जिसने अपने अल्लाह को भुला दिया। बात समझ रहे हो? जिसने अपने रब को भुला दिया, जो अपने रब को भूल गया, अपने रब की रहमत को भूल गया। मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, मेरे रब का ऐलान है, जिसने मुझे भुला दिया मैं दुनिया में सबसे पहले उनको सजा ये दूंगा, मैं उनकी मईशत को तंग कर दूंगा, तंग। और आज है नहीं है? बोलो यारो, आज नहीं है मईशत तंग? आज लाखपति भी रो रहा है, करोड़पति भी रो रहा है, और गरीब ने तो बेचारे ने रोना ही है। अगर इससे बढ़ के कहूं, मैं समझता हूं कि आज गरीब कुछ सुकून में होगा शायद। वो तो यही कहता होना मेरे को पहले पहले कड़ा कुछ है सी जड़ा हुण मैं रोवां है, मैं पहले भी इदां दा सी हुण भी उदां दा ही है। शायद वो सुकून की नींद सो जाता हो, लेकिन जिनके पास माल और दौलत है वो तो आज परेशान होंगे। क्या बनने वाला है, क्या बनेगा?
आओ अपने रब की तरफ आ जाओ अपने अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने अल्लाह की रहमत की तरफ, आ जाओ गुनाहों से माफी मांग लो। याद रखना ये नमाज काफी नहीं है। हम जो 2 सजदे कर लेते हैं ये काफी नहीं है। हम जो रमजान के रोजे रख लेते हैं ये काफी नहीं है। हम जो अपने वुसअत के मुताबिक थोड़ा बहुत सदका खैरात कर लेते हैं ये काफी नहीं है। याद रखना दुनिया की इज्जत और एहतराम और दुनिया की बका और दुनिया के जनाब इत्मीनान और सुकून के लिए जहां इबादत करना जरूरी है वहां अपने आप को गुनाहों से बचाना भी जरूरी है। एक बंदा नमाजें भी पढ़ी जा रहा है, गुनाह भी नहीं छोड़ रहा है। सफ़े अव्वल का नमाजी है, सूद खाई जा रहा है। सफ़े अव्वल का नमाजी है, धोखा दे जा रहा है। सफ़े अव्वल का नमाजी है, झूठ बोली जा रहा है। सफ़े अव्वल का नमाजी है, जनाब राशि है। सफ़े अव्वल का नमाजी है, हलाल हराम की तमीज नहीं है। ऐसी इबादत को क्या करना है? ओह, आपने सुना कुरान भी कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कहते हैं नमाज बेहयाई बुरे कामों से रुकता क्यों नहीं? ये नमाजी रुकता क्यों नहीं? ओ भाई नमाज भी पढ़ी जाता है, तू गलत हरकत भी करी जाता, भाई नमाज इस बंदे को रोकती क्यों नहीं? भाई ये नमाज है ही नहीं जो बंदे को बेहयाई से रोक दे। हमें पता है हमारी नमाजों की कैफियत का, हमें पता है हमारी नमाजें क्या हैं। अंदर बुग़्ज़ लेकर, कीना और हसद लेकर, बातनी बीमारियों का जरा पूरा एक वो क्या कहते हैं गठरी और पंड लेकर हम दिल में लेकर अल्लाह के सामने खड़े होकर कहते हैं अल्लाह अकबर। दिल तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह ही नहीं है। दिल में तो नाराजगियां हैं, दिल में तो झूठ है, दिल में तो धोखा है, दिल में तो फराड है, दिल में तो जिनाकारी है, दिल के अंदर तो कबीरा गुनाहों की पूरी फहरिस्तें कायम है। फिर तुम्हारी नमाज तुम्हें बेहयाई बुरे कामों से कैसे रोके? अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अपना किस्सा बयान करते हैं। याद रखना सहाबी का किस्सा हदीस की हैसियत रखता है, सहाबी की बात भी हदीस होती है। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं चांदनी रात में, सुनिएगा भाई, मैं चांदनी रात में घर से निकला, कब्रिस्तान की तरफ गया। जब कब्रिस्तान में पहुंचा मैं देखता क्या हूं, एक कब्र फटी है, अंदर से कब्र वाला बाहर निकला। उसकी कैफियत यह है कि उसके गले में जंजीर डाली हुई है। और याद रखना करामात हक, मौजदा भी बरहक है, करामत भी क्या है, बरहक है। अल्लाह ताला कभी कभी अपनी कुदरत दिखा देते हैं लोगों की इबरत के लिए है। इस कब्र को मामूली जगह ना समझो, ये कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। आज हमें कब्र के अजाब को बर्दाश्त है, जहन्नम की आग तो दुनिया में बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन दुनिया की रंगीनियों की वजह से बड़ी जुर्रत के साथ ये जुमला बोल जाते हैं और जनाब दुनिया है, कर लो जो होता है, जब मरेंगे तो फिर देखा जाएगा। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं मैं चांदनी रात में कब्रिस्तान में गया, वो कब्र वाला बाहर निकला, उसके गले में जंजीर है, वो भाग रहा है। ऐसे महसूस हुआ जैसे कब्र से जान छुड़ा के भागेगा। इसी अस्ना में कब्र से दूसरा बंदा निकला, उसने जंजीर को खींचा, दोबारा ये बंदा कब्र में गया। वो जंजीर खींचने वाला कौन था? बोलो यारो, मुनकर नकीर आएंगे ना कब्र से? नहीं पता? बोलो तो सही यार, भजांगे आप उथों, दौड़ जावांगे। हमारे अपने प्यारे हमें उस कब्र में दफन करके आएंगे। सबसे पहले कोई प्यारा मेरे आपके चेहरे पे मट्टी डालेगा और प्यारे मोहब्बत करने वाले वो यही कहेंगे कि बाबे को जल्दी दफन करो।
इसको जल्दी दफन करो ताकि हमारी जान छूटे। कब्र में अकेले को सामना करना पड़ेगा मुनकर नकीर का। वो पूछेंगे आकर, उनकी कैफियत भी मेरे नबी ने बताई है, उनकी सूरतें मेरे नबी ने बताई है, कब्र में क्या सवाल होने वाले हैं ये भी मेरे नबी ने बताए हैं। वहां अकेले ने सामना करना, अकेले ने याद रखना। कभी खलवत में बैठ के सोचो, हमने जब कब्र में जाना है हमारे साथ कोई नहीं होगा। हाँ, अगर होगा तो अल्लाह का कुरान होगा, अगर होगा तो मेरे आपके नेक अमाल होंगे। हाँ, अगर नेक अमाल ना हुए तो गुनाह होंगे साथ, ये चीजें साथ जाएंगी। दुनिया दुनिया मज़ारतुल आखिरा, अरबी का मकूला है, ये दुनिया आखिरत की खेती है। आज जो बोएंगे आखिरत में वो ही काटेंगे। कहते जब उसने खींचा, ये मुर्दा दोबारा कब्र में गया, और जब कब्र में जाता है तो मैंने उसके कब्र के पास से एक आवाज सुनी, एक आवाज सुनी। ये मेरे लिए भी इबरत की बात है, आपके लिए भी इबरत की बात है, हर मुसलमान के लिए इबरत की बात है। अलम अकुन उसल्ली, अलम अकुन अगतसिल, अलम अकुन असोमो। वो कब्र वाला मुर्दा कहता है, क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था, क्या मैं जनाबत का गुस्ल नहीं करता था, क्या मैं रमजान के रोजे नहीं रखता था। ये आवाजें दी हैं, ये आवाजें मैं आप भी दे सकते हैं। हम भी कह सकते हैं क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था, क्या मैं रमजान के रोजे नहीं रखता था, क्या जनाब मैं बीवी से हकूक़े ज़ौजियत अदा करने के बाद फौरन गुस्ल नहीं कर लिया करता था, मैं ज्यादा देर नापाक नहीं रहा करता था, मैं ये सारे काम किया करता था। जैसे अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं, मैंने कब्र से ये सदा सुनी है कि क्या मैं नमाज नहीं पढ़ता था, क्या मैं गुस्ल नहीं करता था, क्या मैं रमजान के रोजे नहीं रखता था। फरिश्ते को सवाल कर रहे हैं और फरिश्ता आगे से जवाब दे रहा, हाँ हाँ तू नमाज भी पढ़ता था जनाब, तू गुस्ल भी करता था, हाँ हाँ तू जनाब रमजान के रोजे भी रखता था, हाँ, लेकिन जब तू तन्हाई में होता था ना, जब तू दुनिया में तन्हाई में होता था, जब तू अकेला हुआ करता था, तो बेखौफ होकर अपने अल्लाह से बगैर डरे तू अल्लाह की नाफरमानी किया करता था, तू अपने रब को नाराज किया करता था। तेरे अंदर तेरे रब का खौफ नहीं था, तूने अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया। इस हदीस को सामने रखो और सोचो अपने बारे में। मैं भी अपने गिरेबान में झांको, आप भी अपने गिरेबान में झांके। हम लोगों के सामने तो बड़े हाजी हैं, हम बड़े नमाजी हैं, हम बड़े नेक और पारसे हैं। बंदे की नेक नामी का पता तन्हाई में चलता है। लोगों की नजरों से ओझल होकर अपने आप को महफूज समझने वालों, यह मेरे रब का ऐलान है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम किसी ऐसी जगह पे भी पहुंच जाओ जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा, वहां भी तुम्हें तुम्हारा खुदा देख रहा है। लुकमान हकीम ने ऐसे नसीहतें नहीं कर दी अपने बच्चे को। गुलाम थे, आका ने कहा ये जानवर ऐसी जगह ज़िबा करके लाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो। जो दूसरे गुलाम थे, कोई झाड़ी की ओट में गया, कोई दीवार की ओट में गया, किसी कमरे में गया, कोई कहां गया, अपना अपना जानवर ज़िबा करके ले आए। लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम जैसे गए थे वैसे ही आ गए और आके कहते आका मैं जहां भी गया हूं मेरा अल्लाह मुझे देख रहा था। ऐ इंसान, ये कैफियत पैदा कर। इन नमाजों से, ज़ाहरी नमाजों से कुछ नहीं होने वाला, ज़ाहरी कुरान की तिलावतों से कुछ नहीं होने वाला, ज़ाहरी रोज़ों से कुछ नहीं होने वाला। असर तेरी नेक नामी का, असर तेरे ईमान का पता उस वक्त चलता है जब तू तन्हाई में होता है, तेरे सिवा तेरा रब होता है और कोई नहीं होता। उस वक्त तेरा पता चलेगा तू, तेरे दिल में तेरे रब का कितना खौफ बाकी है। गुजारिश ये है, बजाय इसके हम दूसरों पे उंगली उठाएं, बजाय इसके हम हुकूमतों को गालियां दें,
बजाय इसके हम अरबाब इख्तियार को गालियां दें, बजाय इसके हम जनाब लोगों को कोसें, अपने आप को कोसें, अपने आप को कोसें, अपने गिरेबान में झांकें, मेरे अंदर कौन सी बुराई है? क्या मेरी जलवत और खलवत दोनों बराबर है, या जलवत और है खलवत और है? लोगों के सामने मेरी कैफियत कुछ और होती है, जब तन्हाई में होता हो मेरी कैफियत कुछ और होती है। हाँ, जैसे जलवत में अपने आप को साफ और पाक समझते हो, ऐ काश कि हमारी खलवत भी ऐसी हो जाए, तो देखो मेरे आपके रब की रहमत कैसे मुतवज्जे होती है। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक नसीब फरमाए, आपको भी तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।